Hello class 11. Now before taking up problems of combination and permutation, also one or two problems are there of this permutation also, but I want to I want to start with formulas of combination. I know you people know this formula, NCR n factorial upon n minus r factorial into r factorial. So this is the main formula for solving the questions on combination. And another important formula is NCR is equal to NCn minus R. This is again very much important formula. NCR is equal to NCn minus R. For this formula, remember one thing, that whenever you have to apply this formula, you have to keep in mind that R plus N minus R is equal to what? R plus N minus R is equal to what? R cancels with R, so N. So whenever you get this type of, whenever you are going to apply such formula, you should know, you should keep in mind that this plus this should be equal to these, N and N. Got it? So now suppose there is one question of your book that is NC8, I think, is equal to NC2. Now according to this question, what is it? This is 8 plus 2 should be equal to what? N. तो ये वही फॉर्मूला क्या, क्योंकि आप बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में एक कॉम्बिनेशन इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक आई एम सेइंग दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन, तो लाइक दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू दिस कॉम्बिनेशन, तो ये प्लस ये इक्वल टू ये होना चाहिए. तो ऐसे ही अगर यहाँ पे ये दो कॉम्बिनेशंस बन रहे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे, तो इन दोनों का टोटल शुड ऑलवेज बी इक्वल टू आइदर दिस और दिस, मतलब ये तो इक्वल ही होते हैं. एन एन, सो 8 plus 2 is equal to n, that is n is equal to 10 here. So this is for your first question. Now let's move on to one question I am going to take up from 7.3, that is 10th question. I am reading it from the book, then I'll explain it from here. The question is in how many of the distinct permutations, permutations of the letter in Mississippi do 4 I's not come together? ही सेड मिसिसिपी के जितने भी परमुटेशंस बने उनमें से ऐसा कितनी परमुटेशन, मतलब जितने भी अरेंजमेंट्स बने, यू हैव टू फाइंड कि ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हैं जिनमें आई शुड नॉट कम टुगेदर. सारे आईज 4 आईज नॉट कम टुगेदर, लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी 4 आईज आर नॉट कमिंग टुगेदर. तो ऐसे कितने और केसेस बन सकते हैं जिसमें 4 आईज शुड नॉट कम टुगेदर. सो नाउ फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, we will find out the total arrangements of this Mississippi word. So Mississippi, how many letters are there? 11. So 11 factorial. Now which of the letters are repeating? 4 times S is repeating, so 4 factorial. I is repeating 4 times, so 4 factorial for I. Then P is repeating twice, so 2 factorial. So solving it, we will get the answer of total arrangements. Now I have not solved it yet, मैंने अभी इसको ऐसे ही रखा. Now इफ़ ऑल आईज कम टुगेदर, अभी ये जब सब तरह के क्वेश्चन, सब तरह के अरेंजमेंट्स का आंसर ये, चाहे आई इकट्ठा आ रहा है या आई सेपरेट आ रहा है, तो उस केस में तो दिस इज आंसर. बट अगर आई बेटा आपका, आई हैव रिटन कि अगर आईज इकट्ठे ही आए, लाइक ये मैंने आई इकट्ठे डाल दिए, एंड नाउ दिस विल बी टेकन एज 1 दिस, क्योंकि ये एक अल्फ़ाबेट की तरह चलेंगे, अगर यहाँ है तो भी इकट्ठे, यहाँ है तो भी इकट्ठे, ये इकट्ठे ही रहेंगे. तो इफ ऑल आईज कम टुगेदर, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और नंबर ऑफ परमुटेशंस विल बी व्हाट? दीज आर नाउ हाउ मेनी लेटर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 times is S repeating, so 4 factorial, 2 times is this P is repeating, so 2 factorial. बट इसको आप नहीं लिखोगे बिकॉज ये तो एक लेटर की तरह हमने काउंट करा. सो दिस इज द आंसर व्हेन आईज आर कमिंग टुगेदर. नाउ सी, अगर इस आंसर में से माइनस ये आंसर कर दें तो यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट विच इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन, दैट 4 आईज आर नॉट कमिंग टुगेदर. क्योंकि इसमें कमिंग टुगेदर, नॉट कमिंग टुगेदर सब इकट्ठे आ रहे हैं, और इसमें कमिंग टुगेदर वाले आगे बेटा, तो इन दोनों को माइनस करो तो you will get your answer. So I have done the calculations here. So when 4 i's do not come together is equal to this minus this. So here for doing calculations, what I have did, so this is I have done like this. L11 is open till 8 factorial, so 11 10 9 8 factorial upon
नथिंग आई हैव चेंज 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल पहले से ही कॉमन ले लिए, तो नीचे 1 फैक्टोरियल बच गया. दिस इज 8 फैक्टोरियल हेयर. So now from here 8 factorial can also be taken out common. We have taken it. So 11 into 10 into 9, 990 upon 4 into 3 into 2. So this is on cancelling. So I'll get 165 by 4 और यहाँ तो 1 नहीं था क्योंकि 8 factorial तो बाहर आ गया था यहाँ से. So solving it we get 161 upon 4 and 8 factorial we have opened till 4 factorial. 4 factorial cancels with that. So 2 4 से 8 भी हो जाएगा या आप इसको. So finally this is the answer. एंड 4 से 4 भी आप यहाँ पे कट कर सकते हो. 4 2 8 एंड 2 2 कैंसल 4 फैक्टोरियल विद दिस. सो फाइनली दिस इज द आंसर. आई होप everyone can understand now. Now let's move on to same question, same exercise. 11th question I am taking of the same exercise, and for this third question was the problem. So now see beta, he said in how many ways can the letters of the word permutation be placed such that there are four letters there between P and S always. That there are always 4 letters between P and S. Now see, number of ways. अभी तो बेटा मैंने यहाँ पे परमुटेशन के काउंट करे, परमुटेशन में आ रहे हैं. इफ़ यू काउंट द लेटर्स ऑफ द परमुटेशंस, so this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 were there. So I have put 12 dashes here, 12 blanks I have kept here. Now you can see, अगर बेटे यहाँ पे P डाल दें तो 4 लेटर्स के बाद 1 2 3 4 S कैन बी प्लेस्ड हेयर. अभी अगर मैं यहाँ P डाल दूँ तो S कैन बी प्लेस्ड हेयर. इफ़ यहाँ, क्योंकि अभी यहाँ P है तो 1 2 3, जैसे यहाँ P आ गया. दिस सॉरी पहले भी मिस्टेक होगी. यहाँ P है तो 1 2 3 4 फर्स्ट S विल बी हेयर. अगर यहाँ P है तो इस P को की जगह छोड़ो 1 2 3 4 तो यहाँ S आ जाएगा. इस P अगर P यहाँ है तो 1 2 3 4 तो यहाँ S आ जाएगा. सिमिलरली इफ़ P इज़ हेयर तो S यहाँ आ जाएगा. इफ़ P इज़ हेयर तो S कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा. इफ़ P इज़ हेयर तो S यहाँ आ जाएगा. P इज़ हेयर तो S यहाँ आ जाएगा क्योंकि 1 2 3 4. बट अगर मैं आगे P डाल दूँ तो यू कैन सी फिर आगे S आने की जगह नहीं, क्योंकि ब्लैंक्स तो ख़त्म होगी, हमारे पास तो इतने ही लेटर्स थे. तो इट मीन्स यू कैन सी हाउ मैनी प्लेसेस आर देयर फॉर P. P कितनी जगह में घूम सकता है. तो यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7. नाउ S कैन मूव इन हाउ मैनी वेज. S कहाँ घूम सकता है. तो यू कैन काउंट द एरोज 1 2 3 4 5 6 7. It means what? Number of ways in which P can move is equal to 7. Number of ways in which S can move is equal to again 7. So now if we add them, the number of ways in which these two can move is 14. Now remaining 10 letters can arrange themselves in how many ways? But अगर यहाँ P फिक्स कर दिया और यहाँ हमने S फिक्स कर दिया तो जो बाकी लेटर्स हैं उनके लिए कितनी जगह बचती है. 10 स्पेसेस आर देयर. तो 10 फैक्टोरियल वैसे वो अपने आप को घुमा सकते हैं. बट क्योंकि इन केस ऑफ परमुटेशंस विच लेटर इज रिपीटिंग, T इज रिपीटिंग, so twice it is coming, so that is 10 factorial upon 2 factorial. This is the number of ways in which except P and S rest letters can move, and P and S together can move in 14 ways. So this answer multiply by 14, you will get this answer. This is the final answer of the क्वेश्चन कि कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं जब 4 लेटर्स विल बी देयर बिटवीन P and S. Now I am going to take up miscellaneous exercise of the same chapter, and question 4 was asked as a problem, so I am taking up 4th question. Now 4th question is important and one example is also given that I am taking up after this. Now 4th example, better. I am reading the example from the book first of all. So he said if the different permutations of all the letters of the word examination are listed in dictionary, different permutations of all the letters of the word examination are listed in a dictionary, listed as in a dictionary, how many words are there in the list before the first word starting with E? Now see, अगर आपको डिक्शनरी बेटा चेक करनी आती है तो आई होप आप सबको पता है कि डिक्शनरी में वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं. अगर कोई ए आ रहा है तो उसके बाद पहले ए वाला ही वर्ड कोई आएगा, लाइक ए वाले आएंगे, फिर उसके बाद ए के बाद
ए अगर आ भी रहा है तो ए के साथ बी आ जाता है, देन अगर ए वाला ख़त्म हो गया तो ए के बाद बी आ जाता है. दिस यू नो. इफ आई होप यू ऑल नो हाउ टू यूज़ डिक्शनरी. नाउ सी ए वर्ड, दिस इज एग्जामिनेशन में उसने बोला कि ई वर्ड से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने होंगे, ई से पहले वाले कितने वर्ड्स होंगे. इट मीन्स व्हाट. अब अगर आप एग्जामिनेशन के सारे लेटर्स चेक करो बेटा, एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला लेटर कौन सा आ रहा है जो अल्फ़ाबेटिकली ए. इट मीन्स पहले तो ए से स्टार्ट होएगा. इट मीन्स ए तो आप फिक्स कर दो. जब ए फिक्स कर दिया तो ये तो आपस में घूमते रहेंगे, अरेंजमेंट्स बनाते रहेंगे. अगर यहाँ ए के बाद पहले ए ही आएगा फिर ई आ जाएगा, बट ए से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने हो जाएंगे. 10 फैक्टोरियल, यहाँ ए फिक्स हो गया, सो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. वाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आई इज twice coming and 2 for that, then n is twice coming, so I have written n twice, I twice, so 2 for that. So 907200, that is what 9,72,200 वर्ड्स आपके बेटा आएंगे जो आपको ई से पहले, क्योंकि वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं. तो बोलता है ई से पहले कितने वर्ड्स आए, और ए के बाद तो ई आ रहा है, बी सी डी वाला तो कोई आ ही नहीं रहा, तो ए के बाद तो ई ही आ रहा है, तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स ही आएंगे ई से पहले इसके अकॉर्डिंग. सो दिस इज़ 9,07,200, that is 9,72,200. Now I am going to one very much important question that was asked to me, example 22. I think this is again question based on dictionary. So again very much important question based on dictionary. He said find the number, example 22, find the numbers of words, find the number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word again. If these words are written as in a dictionary, what will be the 50th word? Now he said with or without meaning, how many words can be made out of the how many arrangements can be made using again. Now again, how many letters are there? 1 2 3 4 5, which are repeating. A is repeating twice, so 5 factorial upon 2 factorial is your answer. That is 60 letters are there यूजिंग वर्ड अगेन. मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि कितने लेटर्स बनते हैं अगेन को यूज़, सॉरी नॉट लेटर्स, कितने वर्ड्स बनते हैं विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग अगेन. सो आई हैव चेक्ड दिस 60 आर देयर. अब वो बोलता है 50th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा वर्ड आएगा. सी बेटा, अब ए से शुरू होने वाले वर्ड्स पहले आप चेक करो. ए से शुरू होने वर्ड्स वाले कितने, ए यहाँ फिक्स कर दिया, बाकी 4 आपस में घूमेंगे. सो ए से शुरू होने वाले तो 4 फैक्टोरियल, सो 24 वर्ड्स हो गए. देन आफ्टर ए फिर कौन सा वर्ड आएगा. ही सेड जी, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली आप देखो बेटा तो जी आएगा. ये ए आ रहा तो डजेंट मैटर, क्योंकि हमने एक फिक्स कर दिया ए, बाकी आपस में घूमेंगे, और ये ए उसी के साथ लगेगा. ए से स्टार्ट होने में ये भी आ जाएगा ए. सो डन. देन कम्स टू ए के बाद कौन सा अल्फ़ाबेटिकली चेक करो तो आपका जी आ रहा है. सो जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने होंगे. आप जी फिक्स कर दिया तो 1 2 3 4, बट ए इज़ कमिंग ट्वाइस, तो 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज़ 12. 24 और 12 कितने हो गए, 48, सॉरी 36. देन कम्स टू, अभी नेक्स्ट इज़ व्हाट, एन. एन से स्टार्ट होने वाले लेटर्स कितने होंगे बेटा. अगर आप एन को फिक्स कर दिए एक जगह तो अगेन 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस इज़ अगेन 12, सो दिस इज़ 48. अभी 48 वर्ड्स तो हो गए. 49th वर्ड वो बोलता कि अभी ही सेड आफ्टर डैट 50th प्लेस पे, तो हमने चेक करा देन स्टार्टिंग विद जी द नंबर ऑफ लेटर्स आर 12 एज आफ्टर प्लेसिंग द नेक्स्ट we are left with the letters. This is similarly there are 12 words starting with the next letter. Sorry, I was left, so I आएगा पहले, not N. So I से स्टार्ट करने वाले भी फिर I फिक्स कर दिया तो दिस इज अगेन 12, क्योंकि I फिक्स कर दिया 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल. सो यहाँ पे बन गया आपके 48 अप टू I. A G I को लेके हमारे पास 48 वर्ड्स बन चुके हैं बेटा. अब आ गया N की टर्न. एन को अगर आप, मैं बोलूँ एन से स्टार्ट होने वाले लेटर्स को आप अल्फ़ाबेटिकली लगाओ तो आपको क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल एन विद डबल ए एंड जी आई, देन एन विद व्हाट, ए तो रहेगा ही, और आई आ जाएगा. और जी पहले ये बना क्योंकि जी पहले आता है आई से, तो पहले ये, फिर नेक्स्ट में आएगा ये. तो दिस इज़ 49th वर्ड, दिस इज़ 50th वर्ड. इफ स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.